ڈاکٹر صاحب سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہجامہ کتنے قسم کے ہیں؟ اچھا، الگ الگ قسم سے کیا جاتا ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل. دیکھیے ہجامہ کئی طرح کے ہیں. جی. ایک ہے فلیش کپنگ، ایک ہے فائر کپنگ، ایک ہے ڈرائی کپنگ، ایک ہے ویٹ کپنگ، ایک ہے بیمبو کپنگ. طرح طرح کے ہجامہ ہیں. اب ہم لوگ جو ہے نا، لگتا ہے کہ ہم لوگ فرسٹ سٹارٹ ہم لوگ کیے تھے فائر کپنگ یہاں پہ گلبرگہ میں. ہمارے گلبرگہ میں فائر کپنگ لوگ بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے فائر کپنگ، ارے وہ ایسے ہی رہتا ہے. مگر فائر کپنگ کیا ہے؟ فائر کپنگ کیا ہے؟ فائر کپنگ میں ہوتا کیا ہے، آپ کے جو مزلز جو پورے جو ہے نا ایک دم اسٹف ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں. اس کے بعد میں جب ہم ان کے اوپر جو ہے نا بلڈ کپنگ کریں گے، رزلٹ زبردست آئے گا انشاءاللہ. رزلٹ بہت اچھا آئے گا. اور اس کے ہم لوگ کیا ہے، بیمبو اپلائی کرتے ہیں، ہارنس اپلائی کرتے ہیں، بیمبوز اپلائی کرتے ہیں اور فائر کپنگ کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. اس کے بہت فائدے ہیں بھائی، بہت فائدے ہیں. آئس کپنگ بھی کرتے ہیں ہم لوگ. جن لوگوں کو ایسیڈیٹی ہے، جن لوگوں کو جو ہے نا کنٹینیو بیلچنگ ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو جو ہے نا بلوٹنگ ہے، جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہے، ان لوگوں کے لیے ہم آئس کپنگ کرتے ہیں اور سب سے اچھا رزلٹ آتا ہے. آداب ناظرین، وائس آف گلبرگہ کے خصوصی پروگرام ایک ملاقات آپ کے ساتھ، میں سید نعیم الدین. ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں ایک خاص ایپیسوڈ. جی ہاں، اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہجامہ. کیا ہے ہجامہ؟ ہجامہ کہتے کسے ہیں؟ دراصل ہجامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چوسنا یا کھینچنا ہے. ہجامہ ایک مصنوعی علاج ہے. جسم کے مختلف مقامات پر کٹ لگا کر جلد کی پہلی جلد سے خون کھینچ کر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے. ایک ہجامہ، دوسرا شہد پینے، اور فرمایا آگ سے داغنے میں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دوا جسے تم علاج کرواؤ وہ ہجامہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہجامے سے علاج کروانے کا حکم فرمایا. اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر. ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے، ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے. اس ایپیسوڈ میں ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کا خیر و مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، سوال شروع کرنے سے پہلے آپ کا مختصر سا انٹروڈکشن ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ہیلو ٹو ایوری ون. میرا نام ڈاکٹر بدر الاسلام ہے. میں ایک جنرل فزیشین ہوں اور جو ہے نا میں ہجامہ تھراپسٹ ہوں. سوالوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہجامہ ہے کیا؟ بہت سارے لوگ ہجامہ کرواتے ہیں. دیکھیے ہجامہ جو ہے، میں شروع کروں گا یہ بتا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریوں کو، جو اپنی بیماریاں ہیں جو بھی ہیں، ان سے آپ جو ہے نا ہجامہ سے اس کا علاج کیجیے. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ہجامہ کرواتے ہیں، جس کو فائدہ ہے انہیں بھی کرواتا ہے، جس کو فائدہ نہیں ہے وہ بھی کراتا ہے. ایکچولی ہجامہ کرنے سے فائدہ کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے؟ دیکھیے ہجامہ سے جو ہے نا بینیفٹس کیا ہے. ماشاءاللہ، ہجامہ ایک ایسی تھراپی ہے جس میں جو ہے نا سر کے بال سے لے کے ایڑی تک جتنے بھی بیماریاں ہیں الحمدللہ اس میں سب کی شفا ہے. سر کی بات کریں اگر ہم تو جو ہے نا ہیئر فال ہے، مائگرین ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے نا نیکسٹ اپنا اگر نیچے آئیں گے تو گردن کا درد ہے، کمر کا درد ہے، شکیاٹیکا ہے، انفرٹیلیٹی ہے، سپرم کاؤنٹس کم ہے، یا پھر جو ہے نا کسی کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں لمبار پرابلم ہے، یا پھر پیر کی رگ پکڑی ہے، یا پھر کسی کو شوگر ہے، تمام جو بھی بیماریاں ہیں چھوٹے یا بڑے تمام بیماریوں کی شفا الحمدللہ ہجامہ سے ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، دراصل ہجامہ کرانے کی عمر کیا ہے؟ کتنی عمر میں ہجامہ کروانا چاہیے؟ دیکھیے ہجامہ کروانے کی عمر، ہجامہ جو ہے نا 5 سے 6 سال سے لے کے 60 یا 65 سال تک کے لوگ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے جو اوپر ایج ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں. کب؟ تب جب ان کو کوئی بھی دوسری بیماریاں جیسے جو ہے نا کولیسٹرول کی، یا پھر جو ہے نا زیادہ بی پی زیادہ ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اگر وہ سب اگر ان کو کچھ بیماریاں ہیں تو انکنٹرولیبل ہے تو اس میں کرانا مناسب نہیں ہے. اور کچھ لوگ جن کے سرجریز ہوئے ہیں، یا جن کے جو ہے نا انجوریز ہیں، یا جن کو جو ہے نا ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کسی وجہ سے، تو ان سب پیشنٹس میں تھوڑا ہجامہ کروانا مناسب نہیں ہے.
डॉक्टर साहब जब भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब खुद ही बोलते हैं कि ये चीज़ से परहेज करना। जी। जब हिजामा करवाने के बाद किन चीज़ों का परहेज है? जिस तरीके से कहा जाता है कि हिजामा करने के बाद पानी भी नहीं नहाना चाहिए। जी जी, इसका मैं ये बताऊंगा आपको कि देखिए, आप कोई भी इलाज करवा रहे हैं तो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है आप प्रिकॉशंस लें। जी जी, समझ रहे, प्रिकॉशंस लें आप, जो है ना उसको परहेज़ फॉलो करें। हिजामा में क्या है परहेज़? हिजामा करने के बाद हिजामा में क्या होता है, जब हिजामा कंप्लीट होता है प्रोसीजर, तो एक जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है ना, अपने आप को एकदम जो है फ्रेश फील करता है जी। अपने आप को एकदम जो है ना फ्रेश फील करता है अपने आप को। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन जो है ना और बेटर हो जाता है। अब इसमें जैसे ही अपना हिजामा हो गया, उसके बाद में हिजामा के बाद में एक 12 आवर्स से लेके 15 आवर्स तक आप जो है ना इन जो चीज़ें आपकी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, जमज़म है, या फिर जो है ना अपना जो है ना जो भी चीज़ें अपनी को क़ुव्वत देती हैं, अगर हम वो चीज़ खाएंगे तो हमें जो है ना और बेटर फील होगा। बल्कि इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। चिकन जी, फ्राइड आइटम्स, समझ रहे हैं आप मेरी बात, जैसे जो है ना तले हुए चीज़ें, रोस्टेड चीज़ें, ये सब हार्ड फूड्स का थोड़ा सा हम परहेज़ करेंगे तो हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे हिजामा के। माशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जब इतनी सारी बीमारियों का इलाज हिजामा में है, हिजामा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है, आज भी लोग हिजामा करवाने से डरते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? जी, सवाल अच्छा है माशाल्लाह। देखिए, हिजामा करवाने के लिए लोग इसलिए डरते हैं कि उन्हें जो है ना ये होता है कि हमारा जो है ना कितना ब्लड निकलता है उसमें, ठीक है, ये जो इंसिजन्स लेते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि हमें दर्द होता है, हाँ, कहीं हम करते समय कभी हम बेहोश ना हो जाएं। ये सब चीज़ों का उनको जो है ना थोड़ा सा एक तरह का जो है ना अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं। कब तक? जब तक वो करवा नहीं लेते हैं। जी जी, समझ रहे हैं ना मेरी बात। कई केसेस से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो फर्स्ट टाइम आते हैं करवाने के लिए, हम उनको जो है ना बताते हैं ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो आप जो है ना इसको आप करवा लीजिए। और वही लोग बोलते हैं नहीं सर, हम बहुत कुछ सोचे थे, ऐसा होएगा वैसा होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। समझ रहे हैं मेरे बात, बहुत सिंपल चीज़ है। लोग क्या है देख कर कॉम्प्लिकेटेड बना ले रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग, आग से कर रहे हैं, क्या आग लग जाएगी हमें? अरे नहीं है भाई, नहीं, ये भी एक तरीका है हिजामा का। समझ रहे हैं ना मेरी बात। डॉक्टर साहब हिजामा किन मुकामात पर, किन जगहों पर कराना सबसे ज़्यादा बेहतर है? देखिए, हमारे जिस्म में जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें सुन्ना पॉइंट्स कहते हैं हिजामा के। मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। सबसे अहम पॉइंट जो है हमारे जो गर्दन है उसके नीचे है, जिसको कहते हैं काहिल, ठीक है। वो पॉइंट जो है, उस एक पॉइंट के अंदर 72 क्रॉनिक डिसीजेस की बीमारियों की शिफा है हदीस के मुताबिक, ठीक है। क्रॉनिक बीमारियों की 72 क्रॉनिक बीमारियों की शिफा है। अगर एक पर्सन को जो है ना बहुत हेडेक हो रहा है और गर्दन का दर्द है, अगर आप वो सिंगल पॉइंट भी, अगर पेशेंट अगर जो है ना आपके साथ में गड़बड़ी कर रहा है या फिर जो है ना इज वेरी लाइक बहुत डर रहा है, हाँ भाई एक पॉइंट लगाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उनको शिफा मिलेगी। और दूसरा पॉइंट है सर के ऊपर, याफुक बोलते हैं, ब्रिलियंट पॉइंट, ब्रिलियंट सुनना पॉइंट। याफुक में होता क्या है, याफुक एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो है ना तमाम सर के बीमारियों की शिफा है उसमें। समझ रहे हैं। और जिन लोगों को सिहर भी है, जिन लोगों को जो है ना कुछ और नजर बद का भी मसला है, तो उसके लिए भी वो बहुत जो है अहम पॉइंट है याफुक। समझ रहे हैं, बहुत। और जिन लोगों को माइग्रेन है, साइनसाइटिस है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, जिन लोगों का हाइपरटेंशन है, उस पॉइंट पे करने के बाद में ही विल फील वेरी बेटर इंशाल्लाह, वेरी बेटर माशाल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात। ये और तहतिल कतीफ, सूरिन यापुश, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर इतना जो है ना वक्त नहीं है बताने के लिए, फिर भी बता रहा हूँ। तहतिल कतीफ जो है ना, जो लोग आजकल कैसा है, बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं बहुत सारे लोग, और जो है ना कुछ लोगों की हैबिट्स है चीविंग की, है ना, ये जो भी ये लोग जो है ना खाते हैं, चबाते हैं, और जो लोग स्मोक करते हैं उनकी वजह से उनका कफ होता है, खांसी का शिकार बनते हैं, और जो किसी को जो है ना इन सब चीज़ों की वजह से एंग्जाइटी डेवलप होती है। सबसे बेहतरीन पॉइंट तहतिल कतीफ है। अगर आप याफुक और तहतिल कतीफ लगा लेंगे, यू विल बी लाइक, यू विल फील माशाल्लाह आफ्टर दैट। डॉक्टर साहब तहतिल कतीफ है क्या? मतलब तहतिल कतीफ जो है ना हमारे बैक पे स्कैपुला बोल के एक होता है, पीछे स्कैपुला का नीचे जो है ना एंगल होता है, इनर एंगल ऑफ द स्कैपुला, वहाँ पे लगते हैं 2 पॉइंट्स, सुपर पॉइंट्स। डॉक्टर साहब जिस तरीके से साल में 1 मरतबा या उम्र में कितनी मरतबा कराना चाहिए? देखिए ये कैसा है हिजामा, आप जो है ना
महीना भी करवा सकते हैं आप, जो है ना 2 महीने में एक बार भी करवा सकते हैं आप, जो है ना 3 महीने में एक बार भी करवा सकते हैं। अगर आप रेगुलर हिजामा करवाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना, मैं बोलता हूँ, सर दर्द भी नहीं होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। इंशाल्लाह डॉक्टर जरूर। साहब, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हर चीज़ की लोग एक तारीख रखते हैं, जिस तरीके से ये तारीख को करने से ये पैदा होगा, जी, जी। तो डेट पहले निकाल देते हैं, तो क्या इस्लाम की तारीख के मुताबिक जी। हिजामा करवाना कैसा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हिजामा के ताल्लुक से। इस्लामी कैलेंडर की तारीख के हिसाब से, इस्लामी तारीख के हिसाब से 17, 19 और 21 हर महीने की, जी इन दिनों में हिजामा करवाना सुन्नत है और जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत। अगर आप इन दिनों में हिजामा करवा रहे हैं, आपकी जो भी तकलीफ़ है, हाँ, इसका इंशाल्लाह ये है कि इंशाल्लाह पूरी हट जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, आप परहेज़ के साथ में रहेंगे तो। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये तारीख तो आपने बता दिया है, जी। इसके अलावा भी अगर कोई कराना चाहे, उस तारीख पर अगर बिजी, अगर मतलब जी, उनका जी, शेड्यूल बिजी जी, है, अगर कोई निकालना चाह रहा है, उसके अलावा भी करना चाह रहा है तो? जी देखिए, अगर आप गैर तारीख के हट के भी आप कभी भी करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हो, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, बेहतर है कि- गलत नहीं है, बेहतर है इन दिनों में करवाएं। कई केसेस है जिनके फॉलो अप सेशंस डेट्स पे नहीं आते हैं। जी जी, हाँ वही बता रहा हूं। डेट्स पे नहीं आते हैं, किसी का फॉलो 14th डे को आता है, किसी का वीक में आता है, किसी का 21st डे को आता है, किसी का 1 महीने में आता है। जी जी अगर हम वो डे स्किप कर देंगे तो पेशेंट का कंप्लेंट्स बढ़ जाएगा ना। जी जिस तरह से डॉक्टर साहब मर्द और खवातीन ये दोनों भी करवा सकते हैं, जिस तरीके से मर्द भी है, खवातीन भी अगर कोई करवाना चाहते हैं जी, जी। तो वो भी किस तरीके से खवातीन भी करवा सकती हैं? जी देखिए, ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो हमारे फीमेल्स, अक्सर फीमेल्स जो PCOD, हाँ, यूट्राइन डिसीजेस और जो है ना कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस की जो है ना शिकार हो रहे हैं बीमारियों का, तो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है, बहुत। और मैंने देखा है कहीं केसेस में कि PCOD वगैरह के केसेस में मैंने देखा है कि जल्द से जल्द जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, जल्द से जल्द रिजल्ट मिलता है इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी सारा तजुर्बा भी है, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट भी आएंगे, ऐसा कोई पेशेंट जिसे मतलब आप यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे? जी अच्छा, मैंने स्टार्टिंग की बात बताऊंगा, फिर थोड़ी सी बात बताऊंगा मैं आगे की भी। रिंगवर्म के कुछ केसेस होते हैं, रिंगवर्म जो है ना धब्बे होते हैं जिस्म पे, राउंड धब्बे होते हैं, वो खुजली बहुत होती है उसमें, वो इचिंग बहुत होती है। जी जी, ठीक है, इचिंग बहुत होती है और कंटिन्यू इच करते करते ब्लीड भी होता है उधर। ठीक है, मेरे से एक केस हुआ था स्टार्टिंग में, ऑन द आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट मंथ ऑफ प्रैक्टिस, 2000 ऑफ 2015 और स्टार्टिंग ऑफ 2016। वो टाइम पे देखिए मैंने एक रिंगवर्म का केस ट्रीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज सेशन किया था मैं दोपहर में 12:30 को नेक्स्ट 3 डेज में उसका रिजल्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे जो है मेरे इंस्टा आईडी पे भी वो अपलोडेड है वो केस, बिफोर हिजामा आफ्टर हिजामा मैंने बताया है। उसमें जो है ना हिजामा करने के बाद पूरा जो है ना जो इरप्शंस थे वो निकल गए थे जी। और उसके बाद में कई केसेस जो है ना, एक केस के बारे में बताऊंगा मैं, इनफर्टिलिटी का। शादी होके जो है ना उनको 2.5 या 3 साल हो गया था और दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, मेल और फीमेल हस्बैंड एंड वाइफ के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी नहीं था दोनों के रिपोर्ट्स में। फिर भी तो उनको हमने क्या किया था, हिजामा किया था उनको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 1.5 मंथ में कुछ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना कैरी कर रहे थे, मतलब पॉजिटिव आया था जी। डॉक्टर साहब, बहुत सी मालूमात हिजामा के मुतालिक आपने की है, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, तो अगर कोई करवाना चाहते हैं जी तो आप कहाँ पर मुलाकात होंगी आपसे, किस तरीके से हमारे नाज़रीन को आपका मिलने का एड्रेस, आपके रहने का मुकाम, अगर कोई अगर करवाना चाह जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा जो मुकाम है, मैं हूँ आयशा पॉलीक्लिनिक एंड हिजामा सेंटर में। यह जो लोकेशन है इसका, ये आपको जो है ना आएगा मुस्लिम कॉलोनी में, ताजनगर, अपोजिट टू जुनैदी होटल, आयशा पॉलीक्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, ये है मेरा लोकेशन। और मेरे जो टाइमिंग्स हैं, मैं यूजुअली नाइट टाइम में अवेलेबल रहता हूँ आफ्टर मगरिब टिल 10 PM, एंड मॉर्निंग में भी जो है मैं अवेलेबल रहता हूँ ऑन अपॉइंटमेंट। डॉक्टर साहब, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिजामा कितने किस्म के हैं? अच्छा, अलग अलग किस्म से किया जाता जी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिजामा कई तरह के हैं जी। एक है फ्लैश कपिंग, एक है फायर कपिंग, एक है ड्राई कपिंग, एक है वेट कपिंग, एक है बैम्बू कपिंग, तरह तरह के हिजामा हैं। अब हम लोग जो है ना, लगता है कि हम लोग फर्स्ट स्टार्ट हम लोग किए थे फायर कपिंग यहाँ पे गुलबर्गा में, हमारे गुलबर्गा में। फायर कपिंग लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं है, लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं है फायर कपिंग, अरे वो ऐसे ही रहता है। मगर फायर कपिंग क्या है? फायर कपिंग क्या है?
फायर कपिंग में होता क्या है, आपके जो मसल्स जो पूरे जो है ना एकदम स्टिफ है वो रिलैक्स होते हैं। माशाल्लाह जी। उसके बाद में जब हम उनके ऊपर जो है ना ब्लड कपिंग करेंगे, रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसके हम लोग क्या है, बैम्बू अप्लाई करते हैं, हॉर्न्स अप्लाई करते हैं, हाँ जी जी, बैम्बूज अप्लाई करते हैं और फायर कपिंग करते हैं हम लोग, है ना। इसके बहुत फ़ायदे हैं भाई, बहुत फ़ायदे हैं। आइस कपिंग भी करते हैं हम लोग। जिन लोगों को एसिडिटी है, जिन लोगों को जो है ना कंटिन्यू बेल्चिंग होती है, और जिन लोगों को जो है ना ब्लोटिंग है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों के लिए हम आइस कपिंग करते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। मैं वो सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा जो है, वॉइस ऑफ गुलबर्गा की टीम जो है, नईम भाई और उनकी टीम, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया हिजामा है क्या और हिजामा के फ़ायदे क्या हैं बताने के लिए। और जो है ना मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम को और गुलबर्गा की बाहर की भी आवाम को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप हिजामा से फ़ायदा उठाएं, हिजामा आप करवाते रहें। अगर आपको हिजामा के ताल्लुक़ से कोई डाउट है या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, या कुछ केस आप मेरे साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे जो है ना मेरे नंबर जो है ना 8884839689 और 8310492694 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है डॉक्टर बदर हिजामा एक्सपर्ट, और जो है मेरा यूट्यूब चैनल है बदरुल इस्लाम शेख, और जो है ना आप इन फेसबुक पे भी जो है ना मेरा आईडी है बदरुल इस्लाम शेख। अगर आपको कोई भी केसेस देखना है, या आपको जो है ना कोई भी बिफोर आफ्टर केसेस देखने हैं, या हेयर फॉल के केसेस, या कोई भी केसेस के बारे में आपको जानना है, तो आप मेरे जो है ना इंस्टा आईडी या फिर फेसबुक पे आप जो है ना देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी जो है ना मेरे वीडियोस जो है ना अवेलेबल हैं, आप उनमें भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब, जो बहुत सारी मालूमात हिजामा के मुतालिक हमको। नाज़रीन, हमारा इख्तिताम यहीं पर होता है और अगले एपिसोड में हम नया चेहरा आपके साथ लेकर आएंगे। मैं सैयद नईमुद्दीन।